Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us with your queries on 2331 4444, 23421050 and 23310464. Listeners calling from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Sparsh Saxena. धन्यवाद। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और अब वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मार्केट मंत्र का, और हम आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए और आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Sparsh. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Amir of Kuwait, Mishal Al Ahmad Al Jaber Sabah, announces elevation of India-Kuwait ties to a strategic one. Foreign investors pump in over 26,000 crore rupees into the Indian capital market in December so far, and markets to focus on global trends. FII inflows data for Qs in the holiday curtailed next week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा के साथ बैठक की और द्विपक्षीय साझेदारी को रणनीतिक स्तर पर बढ़ाने की घोषणा की। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में भारतीय पूंजी बाजार में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और वैश्विक रुझान और FII निवेश के आंकड़े कर सकते हैं अगले सप्ताह घरेलू बाजारों का रुख तय। Prime Minister Narendra Modi today held a meeting with Amir of Kuwait, Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. They discussed cooperation in key sectors like pharmaceuticals, IT, fintech, infrastructure and security. In a social media post, Mr. Modi said that India and Kuwait have elevated bilateral partnership into a strategic one. He expressed optimism that the friendship will flourish even more in times to come. The leaders recalled the strong historical and friendly ties between the two countries and reaffirmed their full commitment to further expanding and deepening bilateral cooperation. In this context, they agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. The Prime Minister thanked His Highness the Amir for ensuring the well-being of over 1 million strong Indian community in Kuwait. In an interview to Kuwait news agency Kuna, Prime Minister Modi also said that India and Kuwait share multifaceted ties rooted in history, culture and mutual respect. Mr. Modi said that the strong relations extend across energy, trade and investments. He said trade and commerce have been important pillars of the bilateral relationship and the bilateral trade has been on an upswing. The Prime Minister said the energy partnership adds a unique value to the bilateral trade. He said there is considerable potential to expand bilateral cooperation in sectors such as pharmaceutical, health, technology, digital, innovation and textile. Mr. Modi said the vibrant Indian diaspora is strengthening the friendship further. Mr. Gupta, Prime Minister Modi is in Kuwait today. Is the last day of his 2-day visit. From the point of view of trade and investment and from the point of view of economic ties between the two nations, how strategic, how important is this partnership? No, certainly. It has been the policy of this government in its last 10 years to strengthen India's presence in the international community.
And there have been several such initiatives that this government has actively taken, and we see that if India has to really realize its dreams of becoming an economic superpower, then it cannot do it without forging such strategic tie-ups and partnerships in the international community. And I think Indian economy is on the right path. Right. आशुतोष जी, इस समय जो मार्केट का माहौल बना हुआ है, तो उसमें निवेशक काफी तय नहीं कर पा रहा है कि किस दिशा में बाजार आगे चलने वाला है। तो आपकी क्या इस समय सलाह रहेगी कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें या फिर SIP के रूट के थ्रू ही चलें आगे? नहीं, बिल्कुल निवेशकों के लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि बिल्कुल आप SIP का जरिया, जो SIP का माध्यम है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेहतरीन माध्यम है इन्वेस्ट करने का, और इन्वेस्टर्स को यही करना चाहिए, अपॉर्चुनिस्टिकली इन्वेस्ट करना, मार्केट के उतार चढ़ाव का बेनिफिट लेने के लिए आप कुछ करते हैं, और अगर आप गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट्स ये कहना बड़ा मुश्किल है अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले 3 महीने में मार्केट के क्या रुझान होने वाले हैं। तो मार्केट को टाइम करने की जो शैली है, ये आप कभी कभार बाय लक इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से उसको बेनिफिट कर पाना ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें फंड मैनेजर्स भी कामयाब नहीं होते। फंड मैनेजर्स भी क्लेम नहीं करते उनका सक्सेस उनकी मार्केट टाइमिंग के ऊपर आधारित करने पे। तो मेरे हिसाब से SIP करते चलिए, मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराइए नहीं, और लंबे समय पर फोकस रखेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। और हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज हमारा म्यूचुअल फंड्स पे विशेष कार्यक्रम है, और आप अपने सवाल पूछने के लिए हमें इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। Let me repeat the numbers once again. The numbers on which you can call us with your queries related to mutual funds are 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. All three are Delhi numbers, so do remember to prefix the Delhi STD code in front of the numbers. And let's take the first call, which is coming in from Delhi. That is Yogesh is online with us. Yogesh, welcome to Market Mantra. Please ask your question. जी नमस्कार आप सभी को। सर मेरा सवाल ये है कि हम जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पास कुछ लमसम पैसा आया था, तो उसको हमने जब इन्वेस्ट करा तो मार्केट थोड़ा क्रैश हुआ था, पर उसके बाद और ज्यादा क्रैश हुआ था। तो ये देख के दुख होता है कि हमने जब इन्वेस्ट करा उसके बाद मार्केट और गिर गया। तो इसमें हम किस तरीके से, एक हमने बूस्टर SWP का नाम सुना है, यानी कि ICICI ने ये चीज ऑफर करी है कि आप डेट में पैसा रखेंगे और वो इक्विटी फंड में ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन वो बूस्टर SWP रहेगा, तो उसमें वो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से करते हैं उसको ट्रांसफर। तो क्या ये स्ट्रेटेजी मतलब कारगर है और ये कैसा रहेगा? और दूसरा एक छोटा सा सवाल ये था कि वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में कितना डिफरेंस है? जी देखिए, पहला आपका सवाल बूस्टर SIP। देखिए SIP के कई प्रकार, SIPs को जैसे कि इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश काफ़ी फंड हाउसेस द्वारा की गई है। काफ़ी लोगों ने इसको एनहांस्ड SIP, अलग अलग नाम से इस टाइप की स्कीम्स आती रहती है, जहाँ पे कुछ ना कुछ अगर आप देखेंगे तो मार्केट टाइमिंग का एलिमेंट ज़रूर रहता है। एक नॉर्मल SIP होता है कि आप एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित तारीख को हर महीने लगाते चलते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव को बिना देखे। ये जितने भी एनहांसमेंट्स हैं इसके ऊपर, द सो कॉल्ड एनहांसमेंट्स, इनमें कुछ ना कुछ मार्केट टाइमिंग का एलिमेंट होता है कि जब मार्केट गिरेगी तब वो SIP का अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन देखिए इन सब में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एम्बेडेड है, क्योंकि अगर मानिए मार्केट गिरती नहीं, अगर मार्केट सस्टेन्ड तरीके से ऊपर जाती है तो बाय डेफिनेशन आपका ये पैसा डेट में पड़ा रह जाएगा, और वो ओवर अ लॉन्ग टर्म आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी लॉस साबित होगा। तो मेरे हिसाब से आपके पास अगर बीच बीच में कुछ लमसम राशि इकट्ठा होती है या कहीं से आती है जिसको आपको निवेश करना है, आप छोटे टाइम पे 3 से 6 महीने में उसको स्प्रेड करके लगा दीजिए, लेकिन एक मेथड पे चलिए। ये जितने भी SIP के एनहांसमेंट्स हैं, मेरे हिसाब से ये कहने को इम्प्रोवाइजेशंस का नाम आता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इनमें बिलीव नहीं करता हूँ। एक गुड ओल्ड सिंपल SIP का जो स्ट्रेंथ है वो उसकी सिंप्लिसिटी है, और इन सारे मेथड से हम कहीं ना कहीं वो सिंप्लिसिटी को ही गवा बैठते हैं। तो एक सिंपल SIP चलाए रखिए अपना, कुछ बीच में आपके पास राशि इकट्ठा होती है, लमसम है, उसको 3 से 6 महीने पे स्प्रेड कर निवेश करते चलिए, और लंबे समय में जरूर लाभदायक होगा। ये वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं। जी, वैल्यू और ग्रोथ, ये दो
प्रकार के इन्वेस्टमेंट स्टाइल आप इनको बोल सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़े मतलब प्राइस मल्टीपल्स से थोड़े ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। वो ये देखते हैं कि एक कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन किस दाम पर आज उसका प्राइस ट्रेड हो रहा है। अगर वो बहुत महंगा, उनकी ओपिनियन में वो बहुत महंगा है, तो उसमें वो इन्वेस्ट करने से बचते हैं और वो वेट करते हैं कि जब प्राइस थोड़ा उनके एक्सेप्टेबल रेंज में आएगा वो तभी इन्वेस्ट करेंगे। वहीं ग्रोथ इन्वेस्टर, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं। वो ये मानते हैं कि कंपनी बढ़िया कर रही है इसीलिए उसका प्राइस ऊपर है और अगर उनके हिसाब से कंपनी में कोई कमी नहीं है तो कल को वो प्राइस और बढ़ा होगा। तो ग्रोथ इन्वेस्टर्स थोड़े क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, प्राइस कॉन्शियस कम होते हैं। लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे बहुत सारे फंड मैनेजर्स ग्रोथ वर्सेस वैल्यू की डिबेट में नहीं पड़ते। वो कहते हैं हमारा काम है बढ़िया कंपनी बढ़िया दाम पर खरीदना और लंबे समय का एक माइंडसेट रखकर इन्वेस्ट करना। तो ग्रोथ वर्सेस वैल्यू की डिबेट ऑनगोइंग है और बहुत सारे फंड मैनेजर्स इसमें पढ़ते भी नहीं है जी। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए प्लीज अपना। अच्छा, एक्सपर्ट से हमारा ये सवाल है कि पहले तो नमस्कार आपको, कि जो सेबी अभी कर रही है कि SIF स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड और एक म्यूचुअल फंड लाइफ, तो 2 इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्च होगा तो SIF के बारे में हमें बताएं और लाइट के बारे में कि इसमें टैक्सेशन कैसे रहेगा, PMS जैसे उसमें मतलब होगा या एक बार हम जब तक बेचेंगे नहीं तब तक होगा। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि मैं पहले DSP में इन्वेस्टमेंट करता था, जो इस समय वो माइक्रो DSP ब्लैक रॉक होता था, बाद में वो DSP हो गया और स्मॉल कैप मिड कैप जो फंड था वो मिड कैप हो गया। तो हमारा 4-5 साल से इन्वेस्टमेंट है। साल भर पहले मैंने SIP बंद कर दिया, विड्रॉ नहीं किया हूँ, तो अब हम उसको विड्रॉ कर लूं या, क्योंकि वो 3 मतलब कैटेगरी एवरेज से नीचे उसका प्रदर्शन है। तो धन्यवाद, थैंक यू जी। पहला आपका सवाल SIF को लेकर, देखिए एक नए टाइप की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज म्यूचुअल फंड्स में अलाउ होने जा रही हैं। ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो अभी तक थोड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जैसे कि PMS टाइप की प्रोडक्ट्स में देखी जाती थी। म्यूचुअल फंड्स क्योंकि थोड़े रिस्क कॉन्शियस प्रोडक्ट्स रहते हैं तो उनमें इन स्ट्रैटेजीज को अवेलेबल नहीं किया गया था, जैसे लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। तो ये कुछ नए प्रोडक्ट्स आप एंटिसिपेट करिए आने वाले टाइम में आएंगे, लेकिन एज एन इन्वेस्टर यू शुड जस्ट वॉच इट फ्रॉम द रिंग साइड। अभी आपको इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च होने दीजिए, थोड़ा इनको ट्रैक रिकॉर्ड बनाने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि क्या ये इन्वेस्टमेंट वर्दी हैं। 10 लाख इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा। तो ये एक थ्रेशोल्ड साइज जो जिनका पोर्टफोलियो अचीव कर चुका है उस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए प्रोडक्ट्स रहेंगे। जितनी अभी तक जानकारी है, टैक्सेशन इनका आम जो बाकी रेगुलर म्यूचुअल फंड्स हैं उसी के थ्रू उसी की तरह की रहने वाली है, लेकिन बाकी हो सकता है और क्लैरिटी आगे आने वाले टाइम में आए। MF लाइट एक रेगुलेशंस है। MF लाइट का पर्पस है, जैसे जो फंड कंपनी सिर्फ इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती हैं और उनके लिए शायद वो उतनी जिस टाइप की रेगुलेशंस एक एक्टिवली मैनेज फंड्स पे लागू होती हैं शायद उनके लिए जरूरत नहीं है। तो थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसी फंड कंपनीज के लिए जो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती हैं उनके लिए MF लाइट है। इन्वेस्टर्स का डायरेक्टली इस पे कोई असर नहीं है। आपको अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप अपना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चूज करिए और उसमें इन्वेस्ट करिए। इन रेगुलेशन से आपकी जिंदगी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आखिरी आपका सवाल रिगार्डिंग DSP मिड कैप, जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। DSP मिड कैप थोड़ा निराशाजनक चल रहा है पिछले 2-2.5 साल से। आपने अपना SIP बंद कर दिया, ये मेरा ख्याल है आपका फैसला बिल्कुल ठीक है। थोड़ा और टाइम दे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट अभी है उसमें थोड़ा और टाइम पेशेंस रख के बने रहें और होपफुली शायद ये फंड रिबाउंड करेगा, क्योंकि फंड मैनेजर और फंड मैनेजमेंट टीम अच्छी है। काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं विनीत सांबरे जो इसको मैनेज करते हैं, स्पेशलिस्ट माने जाते हैं मिड और स्मॉल कैप डोमेन के। जो DSP माइक्रो कैप पहले फंड होता था, जो अब DSP स्मॉल कैप बना है, उसके भी पिछले 10-12 साल के बढ़िया परफॉर्मेंस रिकॉर्ड का श्रेय उनको जाता है। तो मेरा ख्याल उनको थोड़ा सा और समय दीजिए, लेकिन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट बंद करने का आपका डिसीजन सही है। The next 2 calls are coming in from Delhi. Let's take the first call, which is from Mihir. Mihir, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Hi, Market Mantra team. So I have 2 funds. One is Mira Asset Large and Mid Cap. So I'm holding this, or in fact my SIP is still active in this fund for, I've been investing since the last 4-5 years in this fund. So what are your feedback on this?
The second is I'm investing recently, I think for 1.5 years in Quant Active Fund. So wanted to know your opinion on this. Thanks. Sure. So both of your funds have been underperforming in the recent past. Talking about Mirae Asset Large and Mid Cap Fund, earlier this was named as Mirae Asset Emerging Businesses Fund. It has Emerging Blue Chip Fund. It has been a long term very superior performer, one of the finest diversified equity funds. So I would say that despite this underperformance, even the best of funds would go through rough phases. As an investor, we need to be a little patient. Nothing fundamentally has changed about this fund. It continues to be managed by the same fund manager, and it has, continued to carry the same variables broadly, which has made it successful over the long term. So I would say that withstand the recent bout of underperformance which this fund is witnessing, and hopefully it should recover and rebound and come back to its winning ways. Quant Active, we've been talking about it in our previous editions of this program as well. Quant generally comes across as a slightly more, aggressive, slightly, more churn-oriented fund. And, given its investment style, when it goes right, it gets it right very well, and it overperforms by a big margin. But, it is bound to hit, these kind of phases when its calls do not go well. It is going through that phase. It has, done tremendously well in the rising markets of the last 2-3 years. This is a litmus test because, the fund hasn't seen a big, this fund company itself hasn't seen a great crash so far in its history. So I would say that you should hold on and you should wait for the fund to see, how it does in a poor market before making a decision. जी, और दिल्ली से ही हमारे साथ अगले कॉलर हैं आरडी सयाल। सयाल जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सयाल जी, सवाल पूछिए अपना प्लीज। Good evening. My question is, there was a fund, Principal Mutual Fund, and GIC Tax Saver Scheme. We have not heard anything of those schemes till date. What has happened to them? And second is, what about this UTI's master gain share? Nothing is coming. Thank you. Yeah, so over a period of time, these funds got merged and got acquired. And if you want specifics, maybe I would suggest you come back with specific names. One is the UTI Master Gain. I would request you to call us in the next week's edition with the specific names, and we should be able to help you. जी, अब नजर डालते हैं अपनी अगली खबर पर। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इक्विटी बाजारों में 21,789 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 4,646 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे भारतीय पूंजी बाजार में कुल शुद्ध निवेश का आंकड़ा 26,435 करोड़ रुपए हो गया। ये निवेश पिछले कुछ महीनों से चल रही निकासी के बाद आया है। विदेशी निवेशकों ने नवंबर में शेयर बाजारों से 21,612 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 94,017 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। हालांकि सितंबर में 57,724 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इक्विटी में एफपीआई प्रवाह 9 महीने के उच्चतम स्तर पर था। इस वर्ष अब तक एफपीआई ने इक्विटी में 6,770 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 1,11,704 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है, जिससे 2024 में भारतीय पूंजी बाजार में कुल निवेश लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए हो गया है। और नोएडा से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, सुरेश जी, स्वागत है आपका मार्केट मंच में। प्लीज सवाल पूछे अपना। सर, आशुतोष जी को मेरा नमस्कार। तो मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरा बहुत पहले HDFC प्रूडेंस फंड में इन्वेस्टमेंट था, जो कि अभी चेंज होके HDFC बैलेंस एडवांटेज बन गया है। तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो बिटवीन बैलेंस एडवांटेज एंड HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड, दोनों में कौन सा बेटर है और क्या मुझे स्विच करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है कि कुछ मेरी इन्वेस्टमेंट HDFC इक्विटी फंड, जो कि अभी फ्लेक्सी कैप है,
तो इसमें क्या बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? ओके, थैंक्स। जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। HDFC प्रूडेंस फंड जो कि एक बहुत ही बेहतरीन काफी विंटेज के साथ, काफी बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक फंड आता था एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में, उसको बैलेंस एडवांटेज बना दिया गया था करीब 4-5 साल पहले। और देखिए, अपनी कैटेगरी में फंड बहुत बढ़िया कर रहा है। पहले क्या था कि जब तक वो प्रूडेंस था, वो करीब 75% आपका पैसा इक्विटी में निवेश करता था और बाकी पैसा डेट में लगाता था। एज अ बैलेंस एडवांटेज फंड वो इक्वेशन थोड़ी सी बदल गई है, वो थोड़ा सा ज्यादा कंजर्वेटिव हो गया है। इक्विटी एलोकेशन 15-20% से ड्रॉप हुई है। अब एक्चुअली वो डायनामिकली मैनेज होता है, क्योंकि वो एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड बन गया है। तो फंड मैनेजर को एक छूट है कि वो मार्केट का रुझान देखते हुए इक्विटी और डेट की प्रोपोर्शन बदल सकते हैं। बट नेट वो अब उतना एग्रेसिवली इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करता जितना कि वो प्रूडेंस के टाइम पे करता था। तो नेचुरली राइजिंग मार्केट में अगर इक्विटी एलोकेशन कम होगा तो उसके रिटर्न थोड़े कम होंगे। वहीं जो दूसरा उनका फंड है HDFC हाइब्रिड इक्विटी, जिसका आपने नाम लिया, वो फंड अभी उसी पद्धति पर है। वो करीब आपका 70-75% पैसा इक्विटी में और बैलेंस्ड पैसा डेट में लगाता है। तो आप इन दोनों में से किसका चुनाव करें, ये ज्यादा जरूरी है। फंड से पहले आप अपना नीड देखिए। अगर आपको थोड़ा मॉडरेट इक्विटी एलोकेशन चाहिए, आपने बताया आप सीनियर सिटीजन हैं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बेहतरीन विकल्प है। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क टेकर हैं, आपको इस पैसे से कोई रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं है, आपका लंबे समय का निवेश है, तब आप हाइब्रिड इक्विटी की तरफ देख सकते हैं। He was also asking about the HDFC Flexi Cap कि उसमें वो रहें या ना रहें। HDFC Flexi Cap में आप बिल्कुल रह सकते हैं। मेरा कंसर्न एक्चुअली ये तीनों ही फंड्स की क्वालिटी से ज्यादा, माय सजेशन वुड बी आप ये देखिए कि आपका टोटल पैसा कहीं आप बहुत ज्यादा ओवर कंसंट्रेटेड तो नहीं है एक फंड फैमिली में। आपने तीनों फंड्स के जो नाम लिए वो तीनों HDFC म्यूचुअल फंड के फंड्स हैं। तो अगर आपका काफी ज्यादा पैसा कॉन्सेंट्रेटेड एक AMC में लगा हुआ है तो डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से आप ऑल्टरनेट्स देखिए। अदरवाइज एट एन इंडिविजुअल फंड लेवल ये तीनों ही फंड ठीक हैं। तीनों फंड्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। And let's take the next call from Mr. R.D. Sayal, who's calling us from Delhi. Mr. Sayal, welcome to Market Mantra. अपना सवाल पूछें प्लीज। थैंक यू मैडम जी। मैं हेलो। हाँ जी, सवाल पूछें अपना। मैं पहली बार आ रहा हूँ इसमें म्यूचुअल फंड में, और मेरे दो हैं मेरे फैमिली मेंबर। दोनों के लिए दो कोई बता दीजिए जो हम बेस्ट, जो हम ये मतलब कर ले सकें म्यूचुअल फंड। आप अपने फैमिली मेंबर्स की थोड़ी डिटेल बताएंगे, क्या उम्र है, तो आप उसके हिसाब से हमारे एक्सपर्ट आपको बता सकेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करें। नहीं, एक तो सीनियर सिटीजन है, दूसरा लड़का है। जी जी देखिए, अगर आप ये लंबे समय का निवेश है, आप इससे कोई रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लंबे समय की अपनी कैपिटल की बढ़ोतरी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो और आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, आपको इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स में पहले इन्वेस्ट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा सुझाव है आप ये 2-3 फंड के साथ शुरुआत कर सकते हैं। ICICI प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड, कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड, DSP एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, आप ये 2-3 फंड्स हैं, इनमें आप अपना SIP के माध्यम से निवेश शुरू करें। अगर मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं और बने रहें, अपना SIP मत बंद करें। थोड़ा अगर मार्केट गिरती भी है तो धैर्य रखें। ये दिस शुड बी रिवॉर्डिंग इन द लॉन्ग रन। जी, और अगरतला से हमारे साथ अर्नब जी जुड़ चुके हैं। अर्नब जी, स्वागत है आपका, प्लीज सवाल पूछिए। There was some technical issue here. We have not been able to get in touch with Mr. Arnab, and let's continue with our next story. After registering their biggest weekly loss in over 2 years, investors will keep an eye on global trends and FII flows for cues in the coming holiday shortened market a week. The market will remain shut on December 25th for the Christmas holiday. Domestic benchmark indices fell nearly 5% last week, tracking weakness in the global markets after the US Federal Reserve indicated only 2 rate cuts in 2025 instead of an earlier forecast of 4. Globally, investors will also keep an eye on monthly durable goods orders, new home sales, and weekly job data from the US, while the UK will reveal its GDP and current account numbers for the September quarter. Furthermore, minutes of the recent monetary policy by Bank of Japan
unemployment rate, and retail sales from Japan will also be keenly watched. On the domestic front, there won't be any major triggers in terms of data, barring foreign exchange reserves and FII and DII investment data. Oil is another factor to watch next week. Brent crude oil prices are hovering between $72 to $75 a barrel, which is a good news for India, a net importer of oil. The primary market will remain active in the coming week as well, with one main board and 2 SME IPOs hitting Dalal Street, while there will be several listings lined up. And let's take the next call. We're getting a lot of calls from Delhi today. The caller is Mr. Goldie, who's calling us from Delhi. Mr. Goldie, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी, सवाल पूछें। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हेलो जी जी, सवाल पूछें, आपकी आवाज आ रही है। कि ब्रांच बैंक के थ्रू भी म्यूचुअल फंड में हम जा सकते हैं कि जैसे हमें बताया गया है कि वहाँ कोई बास्केट होती है और इसमें क्या सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। और ये म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन होते हैं, कहाँ से संपर्क किया जा सकता है, कैसे इनके थ्रू म्यूचुअल फंड में हम एंट्री कर सकते हैं, और इनका क्या कुछ टैक्स करता है, क्या इनकी चार्जिंग होती है जो हम हमारे द्वारा कुछ पैसा लगाया जाए तो इसके आगे वो हमारे लिए काम करेंगे, तो क्या होता है ये? जी, पहला आपका सवाल, क्या बैंक ब्रांच के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आजकल अधिकतर बैंक्स की जो शाखाएं हैं उन पर म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स सेल किए जाते हैं। तो आप अपने जिस भी बैंक के थ्रू आप डील करते हैं, आप उस बैंक ब्रांच के थ्रू, उनके पास वहाँ वेल्थ मैनेजर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में, वो लोग आपकी मदद कर पाएंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। ख्याल आपको ये रखना है कि काफी बार ऐसा होता है कि बैंक ब्रांचेस पर वो लोग म्यूचुअल फंड्स की बजाय यूलिप्स को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा कमीशन मिलता है। तो बैंक्स के लिए या बैंक ब्रांचेस के लिए वो ज्यादा फायदे का सौदा है अगर आप यूलिप खरीदते हैं, लेकिन वो आपके लिए फायदे का सौदा नहीं है। तो यूलिप से आप बचें, आप चौकन्ना रहें। कोई भी अगर ऐसा आपको प्रोडक्ट बेचा जाए जिसमें आपको बताया जाए कि इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा, ऐसे प्रोडक्ट से बचें। आप म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश करें। जहां तक इसके खर्चे की बात है, देखिए आपको डायरेक्ट किसी फंड मैनेजर को कुछ नहीं देना होता। आप जितना भी पैसा निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, सालाना तौर पर म्यूचुअल फंड कंपनी उनमें से अपनी एक एक्सपेंस रेशो डिडक्ट करती है, जो कि 2 से 2.5% के तक हो सकती है। तो वो पैसा आपके जो भी पैसा आपका निवेशित रहेगा उसमें से 2-2.5% चार्ज किया जाएगा, जो कि वो फंड मैनेजर्स की फीस है, फंड कंपनी का अपना खर्चा है, और बैंक ब्रांच जो आपके लिए निवेश करा रही है उनका कमीशन। ये सारा कुछ मिलाकर इन 2-2.5% पर एनम के खर्चे में से निकल जाता है। तो डायरेक्टली आपको कोई खर्चा किसी को नहीं देना है। And let's take the next story. In our bilingual live phone-in program, Public Speak, tomorrow at 9:30 p.m., we will bring an insightful discussion on government's Atal Innovation Mission, strengthening India's innovation and entrepreneurship ecosystem. We will be joined in our studios by Dr. Chintan Vaishnav, Mission Director of Atal Innovation Mission, Niti Aayog. During the program, listeners will have the opportunity to ask questions to our expert relating to Atal Innovation Mission, such as how Atal Tinkering Lab are promoting a problem-solving innovative mindset in schools, success of Atal incubation centers set up in universities, institutes and corporates, and how the mission is reaching to the unserved and underserved regions of India. To participate in the program, simply dial the telephone numbers 011-2342-1050 and 011-2331-4444, 9:30 p.m. onwards tomorrow. Alternately, you can also send your questions via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with the hashtag AskAIR. तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशुतोष जी, आपका मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Amir of Kuwait, Mishal Al-Ahmad Al-Jabbar Sabah, announces elevation of India-Kuwait bilateral ties to a strategic one. Foreign investors pump in over 26,000 crore rupees into the Indian capital market in December so far. And markets to focus on global trends, FII inflows data for Qs in the holiday curtailed next week. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Do join us then. Till then, namaskar. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.